طالوت کے بادشاہ بن جانے کے بعد جب بالآخر بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ واپس مل گیا تو انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ طالوت ہی ان کا حقیقی بادشاہ ہے، اور تب وہ متحد ہو کر 40 سال کے بعد دوبارہ وہ ارض مقدس جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور وہ قدیم علاقہ کنعان جو اس وقت فلسطین کہلایا جاتا تھا سے اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور یروشلم جا پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اور فلسطین کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ میں محمد رضوان افضل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری گزشتہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو آگے بڑھنے سے پہلے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں اور ہماری گزشتہ ایپیسوڈ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ آج سے ہم سیریز کے ایک انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اس سفر کے دوران ناظرین، جب جنگ کے موقع پر ایک نوجوان لڑکے نے انتہائی جرأت مندی سے جالوت کو قتل کیا اپنی غلیل سے، تو اس وقت کے بادشاہ ساؤل یعنی طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ اور یوں کچھ عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ناظرین، بادشاہ طالوت کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کے قبیلے سے تھا، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے قبیلے سے تھا، اور یوں بالآخر بادشاہت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے قبیلے کے پاس آ گئی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سعد میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو بہت قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جو کہ جمع کر دیے جاتے تھے، یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کیا تھا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بھی۔ ناظرین، ان آیات کی تفسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بہت طاقتور حکومت عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی فضیلت عطا کی تھی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور سورہ سعد میں ہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کی روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اس سلطنت اور ان کی حکمت سے متعلق بے پناہ واقعات موجود ہیں، جن کا ذکر تو میں انشاءاللہ اپنی آنے والی سیریز قصص الانبیاء میں تفصیل سے کروں گا، لیکن یہاں پر میں اور فلسطین سے متعلق انتہائی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ٹیبرنیکل یعنی مشکات اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ بنانے کا حکم دیا۔
नाज़रीन, जब बनी इसराइल 40 साल तक सहरा में भटकते रहे तो उस वक्त ये जहाँ क़याम करते वहाँ टैबरनेकल बनाया करते और उस टैबरनेकल यानी मिशकात के एक कमरे के अंदर ताबूत सकीना को रख कर बाहर इबादत किया करते थे। लेकिन जब बनी इसराइल ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़ियादत में उस अर्ज़ मुक़द्दस को पा लिया जिनका उनसे वादा था, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना एक ऐसी इबादत गाह बनाई जाए जहां ताबूत सकीना को मुस्तकिल तौर पर रख दिया जाए और उसके बाहर वहां पर इबादत की जाए। इस ख्याल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान मस्जिद बनाने का इरादा किया। नाज़रीन, जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेशतर मुआजिज़ात अता किए थे, जैसे उन्हें बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश आवाज़ यानी साउंड अता की गई, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया कि वो उससे ज़रें बनाते थे। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये इंतहाई ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह का घर जो उन्होंने बनाने का फ़ैसला किया है उनके ही दौर में मुकम्मल हो जाए, लेकिन बिलाखिर ऐसा ना हो सका और हुक्म इलाही आ गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूँ फरमाते हैं, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था, और उन दोनों ने कहा कि कुल शुक्र और कुल तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता फरमाई। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुआ, और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है। और फिर नाज़रीन, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानशीन मुकर्रर हुए, तो उन्होंने अपने वालिद के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए उस मस्जिद को बनाने का फ़ैसला किया। और नाज़रीन, यही वो मकाम है जहाँ से आज के फ़लस्तीन और इसराइल के इन वाक़यात की इब्तिदा होती है। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हमने हवा को मुसख्खर कर दिया, सुबह के वक्त उसका चलना 1 महीने की राह तक और शाम के वक्त उसका चलना 1 महीने की राह तक। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और ऐसे जिन्न उसके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे काम करते थे। उनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करता उसको हम भड़कती हुई आग का मज़ा चखाते। और कुरान पाक में अल्लाह ताला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कौल को यूँ फरमाते हैं, उसने दुआ की, परवरदिगार मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लिए सज़ावार ना हो, यकीनन तू ही अता फरमाने वाला है। इस मौके पर नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में सही बुखारी की एक हदीस गोशे गुजार करता हूँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सरकश जिन ने गुज़श्ता शब मुझ पर ज़्यादती की और मेरी नमाज बिगाड़ देना चाही, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस पर काबू दे दिया और मैंने चाहा उसे मस्जिद की इस सतून से बांध दूं ताकि सुबह तुम सब उसे देखो, लेकिन उसी वक्त मुझे मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई। और नाज़रीन, यही दुआ गुज़श्ता आयात में मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बनाना शुरू किया। जब पूरा कर चुके तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की, ज़बीहा ज़बा किए गए और बनी इसराइल को जमा करके खूब खिलाया पिलाया।
अल्लाह की वही आई कि तूने ये सब कुछ मेरे हुक्म की तामील की खुशी में किया है, तो मुझसे मांग, जो मांगेगा पाएगा। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला मेरे 3 सवाल हैं। मुझे ऐसा फ़ैसला समझा जो तेरे फ़ैसले के मुताबिक हो, और ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो, और जो इस घर में सिर्फ नमाज के इरादे से आए तो वो अपने गुनाहों से ऐसा आज़ाद हो के जाए जैसे आज पैदा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तो हमने उसके लिए हवा को भी मुसख्खर कर दिया जो उसके साथ नरमी से चलती थी जहाँ का वो कसद करता, और सरकश जिन्नात को भी हमने उसका मुसख्खर कर दिया, सब के सब इमारतें बनाने वाले और गोताखोरों को, और दूसरे जिन्नात को भी जो जकड़े हुए थे जंजीरों में। और इसके बाद नाज़रीन एक इंतहाई अहम आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और देखो हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी आजमाइश में डाला और उसकी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उसने यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे। नाज़रीन, अल्लाह ताला की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ये आजमाइश, जिसके लिए अरबी में लफ्ज़ फितना इस्तेमाल किया गया है, क्या था? वो जसद क्या था जो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर लाकर डाल दिया? बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसे की? फिर वो मलका सबा जिसका तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकते ही अपने दरबार में मंगवा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात और शयातीन पर हुकूमत, परिंदों की बोलियां बोलना, हवा को उनके लिए मुसख्खर कर दिए जाना, और इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात से मुताल्लिक़ इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या। इंशाअल्लाह नाज़रीन, ये सब हम अगली किस्त में जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई वो मस्जिद, वो बैतुल मुक़द्दस, वो अल्लाह का घर, जो सन 2 हिजरी तक मिल्लत इब्राहिमी के मानने वाले तमाम मज़ाहिब बशमूल मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल रहा। इन तमाम सवालों के जवाबात जानने के लिए नाज़रीन हमारी अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।